Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start chapter 10, General Science, 6th class. That is about properties of light. In this chapter, we are to study what is light and what are its properties. These are different things that we are to discuss in this chapter. Light. Light beta is a form of energy. Light is a form of energy. And it is given out by luminous objects. Objects are of two types, luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects are those which give out light. Non-luminous objects are those which don't give out light because they don't have light. Now, what are luminous objects? First is its definition, those objects which give out light. And non-luminous which don't give out light. It's the first difference. Now examples. Luminous objects, sun, bulb, candle. We all know these are sources of light. So these are luminous objects. All stars are luminous objects as they have their own light and they give out light. Whereas planets and satellites, they are non-luminous objects as they don't have light and they don't give out any light. हाँ जी बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है और वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. इसमें एग्जांपल्स आपको दे दी गई, सन, बल्ब, कैंडल. और बताया कि वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स. जैसा मून है, मून भी प्लैनेट जो है वो सैटेलाइट है मून, और इसकी अपनी लाइट नहीं होती. मून से जो हमें लाइट मिलती है वो उसकी अपनी लाइट नहीं होती, बल्कि सनलाइट जो है इट फॉल्स ऑन मून एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीचेज अर्थ एंड वी टेक इट एज इट इज कमिंग फ्रॉम मून. हमें तो ऐसे लगता है कि मून से आ रही है, हालांकि वो मून से नहीं आ रही होती. जी बेटे. हाँ बेटे मंसूर, आपने क्वेश्चन पूछना है? नो सर, वो गलती से हैंड लग गया था Okay, और बेटे. कोई और चीज खोल रहा था. Okay, बेटे. Shayan, you have to tell me what are luminous objects? Yes, sir. What Sir, are the yes? jug that gives it natural light is called. The jug that which gives it natural light is called luminous object. Okay, those objects which give out light are called luminous objects. Ahmad Ijaz, हाँ जी सर. what are non-luminous objects? The object that do not give their own light is called non-luminous. दोबारा बोलेंगे. Objects The objects that do not give their own light is known as are known as. देखो, जब are known as non-luminous object. सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली लगाना है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. अच्छा, नेक्स्ट. Zuhair Sajid. Zuhair Sajid. Zuhair Sajid, you have to tell me examples of luminous objects. The student not responding will be considered absent. Yes sir. Yes, bete. Yes sir. Repeatedly, I am asking you, what are examples of luminous objects? Luminous objects की examples देनी है आपने. मैं बताऊं? फिर मैं बताऊं? No, Rana Mohsen Ali. अरे आप बताएंगे.
Sir, sun, bulb, candle. Well done. Ghulam Mustafa, next. Ghulam Mustafa. Sir, उसने कहा था उसका माइक खराब है. Okay. Sir, उसने he कहा था don't उसका have mic mic. Okay, okay. Muhammad Dawood. Yes, sir. Examples of non-luminous objects. सर मैं बताऊं? बेटे मैं Sir, जैसे 1 minute. पूछ रहा हूँ वो बोलेगा. Abdullah Amin. You are to answer to same question. Sir, sun, bulb, candle. बेटे non-luminous objects के examples पूछी मैंने. आपने luminous की दी. Non-luminous objects. कौन देगा इसके examples? Raise your hands. Sir, मैं मंसूर. Sir, मैं Okay, बेटे मंसूर आप Sir, मैं दूं. आंसर दें. Sir, कौन से objects की non-luminous? Non-luminous, yes. Moon, sir, table, sir, book, sir. Sir, moon Okay. because the Okay. moon take light from the sun. From sun. Okay. Okay, you have explained that. Why is moon non-luminous? Well done. Next, just The to object ensure. is non-luminous Okay, object. okay. It's clear. Now, just to ensure that you are physically present in class or not, I shall speak your names. Shian Ahmed. Yes, sir. Okay. Next is Zuhair Sajid. Zuhair Sajid. Yes, Sir, sir. कुछ वो. Okay. It is your roll call actually. Abdullah Amin. Yes, sir. Okay. Muhammad Dawood. Yes, sir. Okay, beta. You are present. Luminous and non-luminous objects I have explained and I have given you examples. It is clear? Clear to all? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, next. 3 types of materials. जी आपकी आवाज अटक के आ रही है. But now it's clear? सर कब से क्लियर है सर पीछे आ रही है आवाज. बेटे आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है ना किसी का भी, तो इसलिए अगर बाकियों को मेरी आवाज सही आ रही है तो इट मींस कि फ्रॉम माय साइड साउंड इशू इज नॉट देयर. फ्रॉम योर इंडिविजुअल बीच में सही भी आ जाती है. नेटवर्क इट में भी है. सर ये हर सर को कहते हैं कि आपकी आवाज खराब आ रही है. नो प्रॉब्लम. He should clear it. No issue. Objects are of 3 types. नेक्स्ट आपको बेटे 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बताए जाएंगे. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको आपकी बुक में ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं. ओपेक मेंशन नहीं किए गए, लेकिन ओपेक भी याद रखना है आपने. बेटे ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है. दोज मटेरियल्स विच लेट लाइट पास थ्रू देम are called transparent. For example, देखें ग्लास, वाटर, क्लियर प्लास्टिक, एयर, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं क्योंकि इनमें से लाइट पास हो जाती है. नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स. ट्रांसलूसेंट मटेरियल बेटे वो होते हैं जिनमें से कुछ लाइट तो पास हो जाती है लेकिन सारी पास नहीं होती. यहाँ पे आपका मेंशन किया कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल. तो याद रखना है कि सारी लाइट, जितनी लाइट आप थ्रो करेंगे, ये नहीं होगा कि सारी पास हो जाए. अगर सारी पास हो जाए फिर तो ट्रांसपेरेंट हो गए. और ना ही सारी अब्जॉर्ब होती है, बल्कि क्या होता है उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब होता है, कुछ जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो हुए जिनमें से कुछ लाइट पास हो जाती है, बाकी रिफ्लेक्ट होती है. एग्जांपल्स हैं अ ट्रेसिंग पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, वैक्स्ड पेपर. ये 3 एग्जांपल्स आपको देंगे. अब ट्रेसिंग पेपर क्या है?
आपने कहा देखो को ट्रेसिंग पेपर जो होता है ये प्लास्टिक की शीट सी होती है, प्लास्टिक टाइप। इसको हम उसके ऊपर रखते हैं, किसी भी चीज की पिक्चर बनानी हो, किसी चीज की अगर पिक्चर बनानी होती है तो उसको हम उसके ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हम पेंसिल से जो है उस चीज की डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यूं समझ ले कि हमने उसको क्या किया, ट्रेस कर लिया, उस पिक्चर को ट्रेस कर लिया। ये पेपर टाइप ही होता है, बिल्कुल आपको देखने में ऐसे लगेगा जैसे कि बिल्कुल प्लास्टिक है, लेकिन पेपर है ये। अब इस पेपर के ऊपर हम पिक्चर जो है उसको ड्रा कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रेसिंग पेपर, कि हमने पिक्चर को ट्रेस कर लेना होता है इसके जरिए। दूसरा है फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या है, धुंधला शीशा, कि अगर शीशे के ऊपर कोई स्टीम वगैरह जो है, स्टीम पड़ती है या इसका मिस्ट वगैरह धुंध का कोई इफेक्ट है तो वो फ्रॉस्टेड ग्लास होगा। तो ये फ्रॉस्टेड ग्लास भी ट्रांसलूसेंट के अंदर आता है। फ्रॉस्टेड ग्लास यूं भी हो जाता है कि अगर कोई ग्लास है जैसा मिरर है तो उसके ऊपर आप शावर लेते हैं ना, शावर जब गर्म पानी होता है तो स्टीम की वजह से, यानी कि स्टीम का इफेक्ट आप कह सकते हैं ग्लास के ऊपर, फ्रॉस्टेड ग्लास हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा। वैक्स पेपर, पेपर के ऊपर जब वैक्स लगी हो तो वो भी ट्रांसलूसेंट होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, व्हिच डोंट लेट लाइट पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी बेटा, मैं आपसे पूछूंगा श्यान, बेटा Yes, sir. व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? The translucent object, the light, the object in which some light passes is called a translucent object. Yes, those objects which allow some light to pass through them are called translucent objects. Okay, can you give any example? So dirty water. Um, डर्टी sir, वाटर में से ये लाइट क्या थे पास हो जाएगी? सर, ऐसी कुछ थी नाम, बड़े बट वाटर फ्रॉस्टेड था ग्लास सर। को लें, फ्रॉस्टेड ग्लास देखें, यस सर, फ्रॉस्टेड ग्लास, केसिंग पेपर है, टिश्यू। हाँ टिश्यू में से भी लाइट पास हो सकती है कुछ। और इसी तरह आपको मैंने वैक्स्ड मटेरियल जो है, वैक्स्ड पेपर की एग्जांपल दी। ये देखिए आपकी बुक में ये 3 एग्जांपल दी हुई हैं। ये ले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने जो हाईलाइट किया आप देख रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा ये आपको 3 एग्जांपल दी गई हैं आपकी बुक में। जी वैक्स केसिंग पेपर कौन सा होता है? आ ट्रेसिंग पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड वैक्स पेपर। फ्रॉस्टेड ग्लास और वैक्स्ड पेपर। ट्रेसिंग पेपर होता है जिसके जरिए पिक्चर्स को ट्रेस करते हैं, किसी भी चीज की पिक्चर। वैक्स्ड पेपर, वैक्स्ड पेपर वैक्स्ड क्या पेपर, है? पेपर के ऊपर वैक्स लगी हुई हो, अगर पेपर के ऊपर जब आप वैक्स लगा देते हैं ना तो उसके अंदर से भी वो कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, इन्हें उसमें से लाइट ज्यादा फिर पास होती है आम पेपर की निस्बत। हाँ जी, नेक्स्ट राना मोहसिन अली। यस सर। बेटे व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट व्हिच allow no light to pass through them which don't are allow called light to opaque. pass through them. Okay, good. सुफियान नवीद, सुफियान नवीद बेटा जिधर से बातें हों, कोई घर में शोर जिधर से होता है वो म्यूट कर लिया करें। एट ए टाइम में जिसको आवाज देता हूं ना से वो अनम्यूट करें। यस सर। जी बेटे आप बताएंगे व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? जिसके अंदर से लाइट गुजरती सर वो ट्रांसपेरेंट होते हैं सर, ग्लास, वाटर, ओके क्लियर, प्लास्टिक सर। ओके क्लियर। जोहेर साजिद, जोहेर साजिद, सर ये मुझसे कहीं चले जाता है। बेटे मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है जो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देंगे और बोलते नहीं क्लास के अंदर। और सर जब भी अखबार आती है भाग के आ जाता है। जोहेर साजिद, यस सर। वेयर वर यू देयर?
Why were you not physically present in class? Okay, tell me, what are opaque objects? सर मैं बताऊं? नहीं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ। जोहैर, मैंने आपकी एब्सेंट I लगानी है आज। sir me आप क्लास में क्यों नहीं प्रेजेंट होते? थोड़ा सा टाइम क्लास का होता है, इस टाइम आपको क्लास में होना चाहिए। अब्दुल्ला अमीन, अब्दुल्ला अमीन, yes sir. बेटे, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? Sir, जी बेटे, बताएं ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? opaque object sir. जी सर जिन चीजों में सर थोड़ी सी लाइट गुजर जाती है बाकी सारी लाइट नहीं गुजर सकती बेटे, वो मैंने opaque बताया कि object। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती, अब्जॉर्ब हो जाती है, सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है, पास नहीं होती। जी बेटे, मंसूर, आप क्या करना चाहते हैं? Sir, can I tell? ओके, एक्सप्लेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। The objects that do not allow light to pass through them are called opaque objects. एग्जाम्पल? Example, a, uh, uh, a brick, ब्रेक, ओके, ब्रेक, अर्थ, स्टोन, ठीक है, कोई भी a चीज। clipboard, Wooden table, wooden etc. table. क्लेपबोर्ड के एग्जांपल इसलिए नहीं देंगे, क्लेपबोर्ड कई तरह का हो सकता है। Yes, sir. ये क्लेपबोर्ड ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, इसलिए वो एग्जांपल दें जो सिर्फ इसी की हो। ओके, Okay, नेक्स्ट sir. वी मूव नेक्स्ट। ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही जो मैंने आपको तीन किस्म के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, इन्हीं के हवाले से ये थ्री प्रोसेसेस हैं, ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। बताया कि लाइट बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कि लाइट जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो डिफरेंट वेज में बिहेव करती है। जब लाइट किसी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो इसके तीन तरीके हैं जिन तरीकों से ये बिहेव करती है। नंबर वन, इफ लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड। अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो दूसरी तरफ गुजर जाती है। जैसे ग्लास है, एयर है, ठीक है, क्लियर प्लास्टिक के एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, इनमें से लाइट पास होती है, इट पासेस टू द अदर साइड, Hello. इट इज कॉल्ड ट्रांस। यस बेटे, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर ये ना ये जोहेर सादी 2 दफा आया हुआ था अभी। ओके बेटे, ड्यूरिंग लेक्चर डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब। जब मैं आपसे बात करूं उसके बाद उस वक्त आप बात शेयर कर सकते हैं। बेटे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड, दैट्स द वे वी कैन सी अक्रॉस द ऑब्जेक्ट्स। हम उन चीज़ों के आर पार जो देख सकते हैं, उनके दूसरी साइड पे देख सकते हैं, इसी वजह से देख सकते हैं कि लाइट उनमें से पास हो जाती है। दूसरी कैटेगरी कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट्स most part of the light will be absorbed there and this absorbed light is changed into heat energy। तो बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो हैं कि जिनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो जाती है और हीट में चेंज हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल आपको दी गई है ब्लैक सरफेस की, कि ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट। वैसे देखो, जरूरी नहीं कि सरफेस ब्लैक हो, कोई भी और सरफेस भी हो सकती है जिसमें से जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट देखो पास नहीं हुई तो वो ओपेक है। लेकिन ब्लैक सरफेस क्या है, बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, मोस्ट ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लैक सरफेस के अंदर। थर्ड कैटेगरी आपको बताएगी ये, जो कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी थी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी अब आएगी लाइट की, कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस इट बाउंसेस ऑफ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब किसी शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, जैसे मिरर है उसके ऊपर पड़ रही है, पानी के ऊपर पड़ रही है,
तो फिर क्या होता है? इट बाउंसेस ऑफ. बाउंसिंग ऑफ मीन इट टर्न्स बैक. इट बाउंसेस ऑफ मीन्स it turns back. This turning back of light after striking the shiny surface is called reflection of light. इसे हम कहते हैं reflection of light. यहाँ पे डायग्राम में देखें, ये पहला ट्रांसपेरेंट लाइट, ट्रांसपेरेंट सरफेस थी जिसमें से लाइट को शो किया ट्रांसमिटेड. दूसरी डायग्राम में देखें, ब्लैक रफ ओपेक सरफेस. इसके अंदर से देखें ट्रांसमिशन नहीं हुई, लाइट की सारी अब्जॉर्ब हो गई है. तो ये अब्जॉर्प्शन ओनली लिखा कि सिर्फ अब्जॉर्प्शन है. जबकि लास्ट में स्मूथ शाइनी ओपेक सरफेस का बताया, इसमें क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. ये ओपेक सरफेस याद रखो, ओपेक टॉप पे नहीं है, ये इसकी बॉटम ओपेक है, जिस वजह से ये नीचे नहीं पास हो सकी. और ऊपर सरफेस इसकी जो वो स्मूथ और शाइनी ही है. ये आपने ये नहीं ज़हन में लेना कि स्मूथ भी है, शाइनी भी है और फिर ओपेक. ओपेक का मतलब सिर्फ ये लिया है कि इसमें से नीचे नहीं गुजर सकती. ठीक है, नीचे पास नहीं हो सकती. सरफेस इसकी स्मूथ थी, शाइनी थी, इसलिए रिफ्लेक्ट हो गई है. ये बाउंसिंग बैक जो है ये क्या है? इट इज रिफ्लेक्शन. हाँ जी बेटा, ये 3 मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की बताई हैं, अभी मैं आपसे पूछूंगा. एंड आई शैल आल्सो एंश्योर दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट और नॉट. अहमद एजाज. अहमद एजाज. नो आंसर. अहमद एजाज, कम से कम आपको बोलना चाहिए कि पता चले आप प्रेजेंट हैं या नहीं. नेक्स्ट, अब्दुल्ला सर जी अमीन. दूसरों को कहता रहता है कि लगा के भाग देते हैं, खुद भाग गया. ओके बेटे, अब्दुल्ला अमीन. यस सर. आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है, लेकिन बाद में भी मैं ओके चेक सर. करता रहूंगा इसको. ओके सर. अब्दुल्ला अमीन बेटे, आपने बताना व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. यस. सर गुलाम मुस्तफ़ा, आप बताएंगे? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? सर गुलाम मुस्तफा का माइक खराब है. ओके सर एक बार समझाएंगे ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? ओके बेटे, सुन लें. ट्रांसमिशन का मतलब है लाइट का पास हो जाना अक्रॉस एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसमिटेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रांसमिटेड, ना. हाँ जी बिल्कुल, वही जो ट्रांसमिट सर. होना है इसी को पास हो जाना यस कहते सर, हैं, और मैंने यही याद कीजिए ट्रांसमिशन ना ऑफ लाइट है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, व्हेन लाइट passes on transparent objects, कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है, इट इज ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड. ये दूसरी तरफ पास गुजर जाती है, पास हो जाती है उनमें से. इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटे? आप क्लियर है आपको? अब्दुल्ला अमीन. यस सर. यस सर. सर अब ओके सर क्लियर है. ओके, नाउ सुफियान नवीद. यस सर. बेटे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सर सर रिफ्लेक्शन वो होती है सर, जो लाइट अगर किसी चीज पे बचती है सर, ग्लास वगैरह, सर वो दोबारा आती है हमारे पास. सर मैं सुनाऊं. सर वो होती है ठीक है बेटे, सही रिफ्लेक्शन ऑफ सुना. लाइट सर. सर मैं सुनाऊं. बिल्कुल सही सुना आपने. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. स्टूडेंट्स स्टे साइलेंट. बाउंसिंग ऑफ Turn लाइट by इज turn. कॉल्ड रिफ्लेक्शन लाइट. You have to speak सर ठीक है. your turn. Yes, clear. ठीक. राना मोहसिन अली. यस सर. बेटे, what is absorption of light? सर
When light falls on rough opaque object, most part of this light is absorbed Absorb and changed and heat energy. changed Okay, okay. into absorbed and changed into heat energy. This is called observation of Well light. done. Well done. Shayan Ahmed. Sir, you are not Yes, sir. asking any question to me. Shayan Ahmed. It's not your Yes, sir. बेटे आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल देंगे? सर ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट की यस. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांस जो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो एक ही होते हैं बेटे डिफरेंट है. सर फ्रॉस्टेड ग्लास फ्रॉस्टेड ग्लास. ओके, सफिशिएंट. वन एग्जांपल आई आस्क्ड. मंसूर बेटे आप बताएंगे. सर वैक्स पेपर मंसूर मैं बेटे तो- आप बताएं इसकी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की कोई और एग्जांपल बताएं. Translucent object, the object that allow sunlight to pass through them are called translucent object like frosted glass. Sir, मैं कौन सी और कोई एग्जांपल? सर ये लिखना ही ऐसे जॉइनिंग में होता है या फिर अलग फ्रॉस्टेड ग्लास. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा बेटे देखें, एक बच्चा जैसे मैं पूछ रहा होता हूँ वो अनम्यूट करे, दूसरे म्यूट कर लिया करें, बाकियों से अदर साउंड्स आ रही होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है. जिस वक्त आपने बात करनी है, पूछनी कोई बात, उस वक्त आप अनम्यूट करें. You can yourself unmute or mute yourself. You have its facility throughout the lesson. Okay, now meeting may end after some time. Any question from your side? बेटे ये तीनों चीजें आपने क्लियर कर लेनी है. अब ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से लुमिनस, सर जी आप इनका 2 दफा टेस्ट देते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. बेटे आप ये जो आज का लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी हो चुका है, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी. थोड़ी सी चीजें मैं आगे और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आप ये पहले अंडरस्टैंड कर भी चुके हैं. बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस. यहाँ पे आपको बताया गया है आइडेंटिफाई ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द पिक्चर. कि पिक्चर में देखो कार के अंदर कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है. देखो कार के अंदर की चीजें, सीट वगैरह आपको नजर आ रही है तो ये ट्रांसमिशन को प्रूव कर रही है. अगर लाइट इसमें से पास ना होती तो अंदर की चीजें नजर नहीं आनी थी. इसके डिफरेंट कलर्स जो हमें नजर आ रहे हैं, कोई भी कलर हमें उस वक्त नजर आता है जब उस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है. तो ये डिफरेंट कलर्स का नजर आना ये प्रूव कर रहा है कि रिफ्लेक्शन भी हो रही है और अब्जॉर्प्शन भी हो रही है. अगर अब्जॉर्प्शन ना होती, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती तो वाइट कलर नजर आना चाहिए था, लेकिन वाइट कलर तो नजर नहीं ना रहा. सनलाइट जो इसमें बेटे 7 कलर्स होते हैं, अगर 7 के 7 ही रिफ्लेक्ट हो जाए तो वाइट कलर नजर आता है. जैसे देखिए पानी के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है या मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है. तो इसलिए अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है और ट्रांसमिशन भी हो रही है. तीनों प्रोसेसेस हो रहे हैं. ये नेक्स्ट जो बात थी कि रिफ्लेक्शन होती कैसे है, इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपके स्मार्ट सिलेबस में ये चीज नहीं है. देखिए लाइट जब किसी स्मूथ शाइनी सरफेस पे पड़ती है, जैसे यहाँ पे अब ग्लास के ऊपर पड़ रही है, तो कैसे रिफ्लेक्शन होती है, हम इसको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ एक्सप्लेन करेंगे. ये बेटे लाइट जो इस सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है. जो टर्न होकर वापस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है. और इस पॉइंट पी के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ये नॉर्मल है. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो इंसिडेंट एंगल है, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हैं. पहला ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और दूसरा ये है, ये देखिए दूसरा लॉ भी लिखा कि इंसिडेंट एंगल जो है वो
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ला ये हुआ और दूसरा क्या बताया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये बेटे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। और पिछला क्वेश्चन आपने याद करना है। बेटे को क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो पूछ सकते हैं। नो सर, नीट ऑफ चार्ज एंड रिफ्लेक्शन सर, ये याद करना है। जी याद करना है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। यस सर। ये क्वेश्चन आपने याद करना है, कल सबको याद होना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है। जी 2 दफा याद कर रहे थे सर। इस तरफ एनी सर होमवर्क भी क्वेश्चन? सर कोई सर होमवर्क भी कोई है? जी बेटा ये होमवर्क है आपका। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।